Houston સમાજમાં આવ્યા છે since this is the last session now તમારા લોકોનો ઉલ્લાસ વધારો વિધાઉટ ઉલ્લાસ તમે ધર્મના નામે જે પણ ક્રિયાઓ કરશો ને એનું કોઈ ટ્રાન્સફોર્મેશન પરિણમન તમારા અંદર થવાનું નથી અને પછી નહીં કહેતા કે એક ઓર મનુષ્ય ભાવ મારું ચૂકાઈ ગયો એક જ્ઞાનીના પ્રત્યે એક સત્પુરુષના પ્રત્યે ખૂબ ઉલ્લાસનો ઉમળકો ઉમંગ उत्साह ए બધું હોવું જોઈએ ખાલી સાંભળવા પૂરતું સાંભળો તો એ તો પુણ્યના યોગમાં ગયું પણ સાંભળીને ઉત્સાહ આવે મતલબ હવે પાત્રતાના યોગમાં પાત્રતા તમારી ખરાશે આ તો અત્યારના પુણ્ય હતું એટલે સાંભળવાનો યોગ મળી ગયો પણ એનાથી તો તમે ખાલી પુણ્ય સ્પેન્ડ કર્યું એટલું થયું સાંભળવાનો યોગ હતો એટલે કોકને સાંભળવાનો મોકો મળી ગયો એ પુણ્યના એકાઉન્ટમાં ગયો પણ સાંભળવાથી પાત્રતા બનવી જોઈએ એ ક્યારે આવશે જ્યારે શ્રવણની અંદર ઉત્સાહ હોય ઉમંગ હોય ઉત્તરાધ્યાય સૂત્રની અંદર 4 અંગ દુર્લભ કીધા છે મનુષ્યત્વ શ્રવણ શ્રદ્ધા અને ચોથું શું છે સંયમ કારણ કે આ ધ્યાનમાં યુ આર બાઉન્ડ ટુ સ્લીપ એટલી બ્યુટીફુલ મ્યુઝિકલ બીટ્સ હોય કે આપણને ઊંઘ આવવા જ લાગે સારું છે કે ખરાબ છે મને નથી કેવું કારણ કે તમે બધા સમજદાર છો પણ શ્રવણનો યોગ મળ્યો અને આ મનુષ્ય જીવન મળ્યો એ બધું પુણ્યના ખાતામાં છે પણ જો તમે આ પુણ્યથી પાત્રતા વધારી લ્યો તો આ પુણ્ય તમારું સફળ થયું ને તો જસ્ટ ઠીક છે પુણ્ય વપરાઈ ગયું અને બાકી કાંઈ કામે પણ લાગ્યું અને કેટલું દુર્લભ છે ખબર છે ઉત્તરાધ્યાય સૂત્રની નિરુક્તિની અંદર ભદ્રબાહુ સ્વામી એટલું સરસ વર્ણન કરે છે કે તમને મનુષ્ય જીવન મળ્યું અને સાથે સાથે શ્રવણનો યોગ મળ્યો આ બે વસ્તુ અગર મળી છે ને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે કે નહીં સાથે સાથે ધર્મ શ્રવણનો યોગ મળ્યો તો કેટલું દુર્લભ છે એ દુર્લભતા બતાવતા ભદ્રબાહુ સ્વામી લખે છે એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જેમ તમે આખા પૃથ્વીના અનાજ ભેગા કરો તમને બહુ વધારે લાગશે કદાચ સમજાશે નહીં તો હું તમને કહું ખાલી હ્યુસ્ટન શહેરના તમે આખું અનાજ છે ને ભેગું કરો જેટલા પણ ગ્રેન્સ છે અને એનો ઢગલો કરો તો કેટલો ઊંચો જાય એ ઢગલો કલ્પનાની બહાર અહીંયા તમે એનો ઢગલો કરો અને એને ઊભા કરી દો તો કેટલો ઊંચો એ ઢગલો થાય હવે એક મુઠ્ઠી રાયના દાણા લ્યો સરસો રાય લ્યો અને એને એ ઢગલાની અંદર ભેળવી દો કલ્પના થાય છે એ ઢગલામાં ભેળવી દો મિક્સ થઈ ગયા બધા ગ્રેન્સની સાથે સરસો મિક્સ થયા હવે શું કરો એક બુઢી બાઈને બોલાવો જે બુઢી બાઈને આંખે મોતિયો હોય અને એને કયો વીણી કાઢ શું સરસો દ્રષ્ટાંતની કલ્પના કરો તો તમને લાગશે અસંભવ છે असंभव लागશે કે નહીં કે આ કેવી રીતે આટલો બધો અનાજનો ઢગલો હોય અને એની અંદર રાયના એક મુઠ્ઠી રાય નાખે અને બુઢી બાઈ જેના બંને આંખે મોતિયા છે એ કેવી રીતે વીણી શકે પણ ત્યારે આચાર્ય ભદ્રબાહુ સ્વામી પોતે જ લખે છે કે એ બુઢી બાઈ વીણી શકે તે સંભવ છે પણ મનુષ્ય જીવનમાં શ્રવણનો યોગ મળવો એનાથી વધારે દુર્લભ છે આ રીતે 10 જાતના દ્રષ્ટાંત એની નિરુક્તિમાં મુકાયા છે 10 જાતના અલગ અલગ એ સમય ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનો હતો તો એ સમયમાં બધું ઘણા બધા જે બી દ્રષ્ટાંતો એ સમયમાં લાગુ પડતા હતા એના હિસાબે બધું લખ્યું છે અને શુદ્ધ કેવલી હતા એટલે એમ નહીં વિચારતા કે આ તો અતિશયોક્તિ કરી રહ્યા છે તમે જોવો ને આ વિશ્વમાં કેટલા મનુષ્ય છે અને એમાં શ્રવણનો લાભ કેટલાને મળે છે સાચા ધર્મના વિશે આત્મશુદ્ધિના વિશે સાંભળી શકવાનો યોગ કેટલાને મળે છે તમને ખ્યાલ આવશે ખરેખર દુર્લભ છે તમારું પુણ્ય છે કે જેના કારણે તમને મનુષ્ય જીવન મળ્યું અને સાથે સાથે શ્રવણ પણ મળ્યું પણ આ પુણ્ય તો વપરાઈ રહ્યું છે એમ માનો તમારો અમુક પુણ્યનો ઢગલો હતો આજે તમે શ્રવણમાં આવી ગયા તો તમારું પુણ્ય વપરાઈ ગયું એમ જ મનાય કે નહીં એ પુણ્ય તમારું સ્પેન્ડ થઈ ગયું એ પુણ્ય સ્પેન્ડ કરીને તમે આ શ્રવણની અંદર બેઠા છો ત્યારે આ પુણ્યની જો પાત્રતા વધે એનો મતલબ શ્રદ્ધા અને બીજું સંયમ 4 વાત કીધી છે ને ભગવાને મનુષ્યત્વ
શ્રવણ, શ્રદ્ધા અને સંયમ. પહેલા બે તો પુણ્યના આધીન છે. મનુષ્ય ભવ મળવું એ તમારા પુણ્યના આધીન છે કે નહીં? અને શ્રવણ મળવું એ પણ તમારા પુણ્યના આધીન છે. પણ આ બે પુણ્ય સ્પેન્ડ થઈ રહ્યા છે, વપરાઈ રહ્યા છે, ખર્ચ થઈ રહ્યા છે. એ ત્યારે જ ખર્ચ થવું કામનું છે કે જ્યારે એનાથી તમે પાત્રતા લાયક કરો. અને પાત્રતા એટલે શું? શ્રદ્ધા અને સંયમ. તમને નિર્ણય થઈ જવો જોઈએ કે મોક્ષનો માર્ગ આ જ છે મારા માટે. મારા માટે આ સત્સંગ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. બાકી જેના માટે જે હોય, જેમ આપણે નિર્ણય કરીએ ને કે આ ડોક્ટર મારા માટે બરાબર છે, એનો મતલબ એવો ન થાય કે બાકી બધા ડોક્ટર ગલત છે. મારા માટે આ ડોક્ટર કામનો છે, એની દવા મને એકદમ સૂટ થાય છે, તો કે મારા માટે. એવી રીતે તમારે પણ નિર્ણય કરવો પડશે કે કોનું શ્રવણ તમારા માટે કામનું છે. કારણ કે મનુષ્ય તમે છો, શ્રવણનો યોગ પણ તમને મળ્યો છે, પણ જે શ્રવણ કરીને શ્રદ્ધા અને સંયમમાં વિકાસ થતો હોય એ શ્રવણ તમારા કામનું છે. બાકી બધા તમારા કામના નથી. સંયમ એટલે તમારો રાગ અને દ્વેષ મંદ થતા હોવા જોઈએ. હવે ધર્મના આધારે રાગ અને દ્વેષ નવા ચાલુ નથી કરવાના. પહેલા શું થાય, અહીંયા રાગ દ્વેષ તો ઓછા થાય સંસારમાં, પણ હવે ધર્મ ક્ષેત્રે રાગ અને દ્વેષ કરવા માંડે કે આને આમ નહીં કર્યું, આને આમ નહીં કર્યું. નહીં, તમારા રાગ અને દ્વેષ સંયમ માર્ગે એકદમ ઓછા થાય. એ જ સંયમ છે. અને મારે આ રીતે જ આગળ વધવાનું છે, એ છે શ્રદ્ધા. આ બે વસ્તુ કલ્ટિવેટ કરવાની છે. આ જ વાત ઉત્તરાધન સૂત્રના 29 ચેપ્ટરની અંદર 4 આધાર રૂપે આપણે અત્યારના સમજી રહ્યા છે. અત્યારના ધર્મના 4 આધારમાંથી કેટલા બે કર્યા આપણે? कया वे गया? संवेग અને निर्वेग. संवेग का स्वरूप क्या है? सही दिशा. सही दिशा. संवेग का मतलब ये है, प्रक्रिया क्या है संवेग की? उत्साह पूर्वक सत्संग को सुनना या कुछ भी अच्छा हो जब तो उसमें उत्साह पूरा होना. नंबर 2, गुरु के प्रति राग ज्यादा, पौद्गलिक पदार्थ से ज्यादा गुरु आदि के प्रति राग. और तीसरा, धार्मिक अनुष्ठानों का अर्थ समझकर करना. किसी सत्संग में आप जाओ और आपको नींद बहुत आती हो ना, तो डोंट गो टू दैट सत्संग, क्योंकि वो आपका धर्म का पहला आधार ही नहीं रखने देगा. क्योंकि पहला आधार ही धर्म का ये है कि जहाँ जाकर आपका संवेग बढ़े. लेकिन कहीं आप सत्संग में जा रहे हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, તમને કઈ સમજાતું જ નથી સત્સંગમાં જઈને, સ્ટોપ ગોઈંગ. ડોન્ટ થિંક કે જતા જતા સમજમાં આવવા મળશે. જતા નો, વેઇટ કરો. એવું ના હોય. અગર એની સાથેનો તમારો કોઈ યોગ હોય તો તમને પહેલી વારમાં બી કંઈક તો સમજાવવું જ જોઈએ. તમારી અંદર ઉત્સાહ અને ઉમંગની થોડી ઘણી કિરણ તો થવી જ જોઈએ, તો જ જજો. બાકી એમ થાય કે જઈને થોડા ઝોકા લઈ લેશું, કાંઈ વાંધો નહીં. તો તમારા સંવેગ જે છે ને, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એ સંવેગનો આધાર જ કોઈ દિવસ તમારી અંદર નહીં આવે. મેક શ્યોર એવી પુસ્તકો બિલકુલ નહીં વાંચતા કે જે વાંચીને એકદમ. મને હમણાં જ કોઈ પ્રશ્ન પૂછતું હતું, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ લેડી. શી આસ્ક્ડ મી કે મને રાતના ઊંઘ નથી આવતી, તો બેન કંઈક મને બતાવો ને કોઈ જાપ કે જે કરતા કરતા મને ઊંઘ આવે. મેં તો અમે તો જેટલા જાપ જાણ્યા છે એ બધા જાપ જાગવા માટે છે, સુવા માટે તો એકેય જાપ જ નથી. તો કે એવું કેમ? એવું જ છે સિદ્ધાંત, પણ તમને એવું લાગે. કોઈ પુસ્તક આપો, યુઝ્યુઅલી ઘણા લોકો ત્યાં અમારા યુથનું ગ્રુપ હોય એમ કે ઊંઘ ના આવતી હોય ને એકાદ પુસ્તક વાંચીએ એટલે સારી ઊંઘ આવી જાય. ઊંઘ ન આવતી હોય રાતના, પણ અમે એકાદ પુસ્તક વાંચીએ ને, 2-3 પાના વાંચીએ એટલે અમને પછી સારી ઊંઘ આવી જાય. એટલે આ તમારો ધર્મ પ્રત્યેનો અહોભાવ બતાવી રહ્યું છે કે કેટલો અહોભાવ છે. ધર્મનું કૃત્ય કેવલ જગાવવું છે, તમને સુડાવવું નથી. અને તમે પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરો છો સુવા માટે. તમે મંત્ર મારી પાસે માંગો કે મને ઊંઘ આવી જાય, એના માટે કોઈ મંત્ર આપો, તો આ બધું તમારું મિથ્યાત્વ, તમારું અજ્ઞાન, તમારી મૂર્ખતા, તમારી બેવકૂફી બતાવે છે. અટેન્ડ ઓનલી ધોઝ સત્સંગ. એન્ડ ઇન ફેક્ટ આઈ વુડ ઓલ્સો રિક્વેસ્ટ યુ કે સત્સંગના ટાઈમ પણ એવા અરેન્જ કરો કે જ્યારે તમે તુરંત ચાર્જ આપો. તમે સેન્ટરની સગવડતા નહીં જો,
તમે મુમુક્ષુઓની સગવડતા નહીં જોવો, તમે એક જ સત્સંગ રાખો, પણ એવા ટાઈમે રાખો જ્યારે બધા લોકો ચાર્જ અપ હોય. તમે સજેસ્ટ નહીં, કારણ કે આપણને એમ થાય કે હવે કોઈ એટલી દૂરથી આવ્યું છે તો બે ત્રણ સત્સંગનો લાભ લઈએ, પણ લાભ લેવાના બદલે ઉલટાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તમને, મને નહીં. હું તો બોલવાની છું, હું તો પૂરી જાગૃત જ છું, અને હું જાગૃત છું એટલે મારો સંવેગ તો ટકેલો છે. પણ તમે લોકો જેમ જેમ ડલ થતા જશો, ઊંઘમાં આવતા જશો, એમ તમારા સંવેગની આધારશિલા આખી હલી જશે. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ ઓર નોટ? એ રીતે સેન્ટર ઉપર પણ અરેન્જ થવાનું. હું તો ઘણીવાર તો એક જ સત્સંગ રાખું, ઓનલી વન. પણ ઘણીવાર આપણને લોભ અને ત્રણ સત્સંગ સાંભળી લેશું તો વધારે લાભ થશે, તો એવું ન હોય. તમે ઉલ્લાસથી સાંભળશો ને તો લાભ થશે. તમે વધારે સાંભળશો તો લાભ નહીં થાય. મેક શ્યોર કરજો. એટલે ચંદ કૌશિક જેવાએ ખાલી કેટલા સત્સંગ સાંભળ્યા હતા? એક જ સત્સંગ, અને એનો ડ્યુરેશન બી કેટલો હતો સત્સંગનો? few seconds या few minutes રાખો. 5 મિનિટનું સત્સંગનું ડ્યુરેશન હતું તો બી ચવીને મરીને ડેવલપ જશે, અને આવતા ભાવમાં એકાવતરી જેવું જ વાત કરે છે. એના માટે બી એકાત્મમાં જેનો મોક્ષ છે, ડેવલપમાંથી પાછો આવશે અને પછી મોક્ષે જશે. કેમ આટલું ઓછું પણ પરમાત્માનું સમાગમ, પણ એનો સંવેગ એટલો જાગ્યો એ સમયમાં કે તરત ભવની ઘટી થઈ ગઈ. પણ આપણને શું થાય, 3-4 સત્સંગ સાંભળીએ તો વધારે લાભ. હું તમને મારા તરફથી એડવાઇસ કરું છું, એક જ સત્સંગ સાંભળો, પણ સાંભળીને એનું ચિંતન. આજથી એટલીસ્ટ એટલું ચિંતન કરશો, અમુક જણા જેના ચહેરા ઉપર ઉલ્લાસ દેખાય છે, એટલું તો ચિંતન કરશો કે તમારા જીવનમાં શુભ ક્રિયા આવી કે અશુભ ક્રિયા. તમારા શુભ કર્મ શુભ થઈ રહ્યા છે કે અશુભ, એટલો તો વિચાર થશે કે નહીં આજથી. તરત કોઈ પણ કર્મની પાછળ કામના છે એટલે અશુભ છે. મારા બચ્ચા લોકોને હું સંસ્કાર આપું, એની પાછળ કામના શું છે? જો હું સંસ્કાર આપું તો આગળ જઈને મારી જ સેવા કરે. અગર એ કામના છે તો તમારો સંસ્કાર આપવાનું શુભ કૃત્ય પણ શું થઈ ગયું? અશુભ. પણ જો એની પાછળ તમારી કામના હોય કે એના સંસ્કાર આપું તો આગળ જઈને જ્યાં જાય એ સુખી થાય, એના માધ્યમથી બીજા 10 જણા પણ શાંત રહે અને સુખી થાય, એ કામના છે તો તમારું સંસ્કાર આપવાનું કૃત્ય શું થઈ ગયું? शुभ कृत्य. आज से कम इतना इंट्रोस्पेक्शन तो आप कर पाएंगे कि आपका कौन सा कर्म शुभ है या कौन सा कर्म अशुभ है. परमात्मा के सामने दिया जलाते हैं तो वहां पर दिया जलाकर आपकी भावना क्या है? ज्यादातर समाज तो मैं आपको कहूँ, मैं अगर रीड करती हूँ साइकोलॉजिकली तो मैं समझती हूँ उनका दिमाग ही वहां पर नहीं है. मैकेनिकली वो क्रिया हो रही है, ये दिया जलाया, इधर उधर सब देख रहे और निकल गए. लेकिन अगर दिया जलाने के अंदर कामना क्या है तुम्हारी? मेरा अज्ञान जाए, ये कामना होनी चाहिए. लेकिन मेरा अज्ञान जाए, खाली इतनी कामना करोगे तो ये कर्म कौन सा हो गया? शुभ क्या शुभ? मेरा अज्ञान जाए, दिया करके खाली ये कामना कर रहे हो क्योंकि आप अपने संपत्ति, अपने समय, शक्ति, ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल मेरे लिए अशुभ कर्म हो गया. लेकिन आप ये कामना करते हैं कि मेरा अज्ञान जाए, जिस कारण मैं और लोगों के प्रति राग द्वेष न करके उन्हें भी दुखी ना करूं. अब आपका पर्पस दूसरों को भी सुखी करने का आ गया, तो वही दिया जलाने का काम क्या हो गया? हर कर्म के अंदर शुभ अशुभ का भाव देखो. आप लोग खाना बनाते हो तो ये खाना बनाने का कर्म शुभ है क्या अशुभ? हाँ, शुभ है. It depends on your thought. हाँ, now see that is the right answer. It depends. आप खाना बनाकर एप्रिसिएशन चाहते हो, क्रिटिसिज्म नहीं चाहते. आप चाहते हो लोग तारीफ करें, लोग हमारे से कहे कि कैसे बनाया. अगर खाना बनाने के बाद एक स्माइल की भी अपेक्षा है ना, कि सामने वाला स्माइल करके हमको ऐसा बोल दे, आपको अपेक्षा है, तो आपका खाना बनाना क्या हो गया? अशुभ. और आप बस इतने प्रेम से भरकर खाना बना रहे हैं कि सामने वाले को खा के संतोष हो, अपना उपयोग दूसरे के लिए कर रहे हो. अब ये कर्म क्या हो गया? Therefore it depends. आप क्यों खाना बना रहे हैं? आपने बनाया होगा बहुत अच्छा सा हलवा और सामने वाला अगर थोड़ा सा भी अप्रिशिएट नहीं करेगा तो अंदर में तुरंत इरिटेशन होती है कि नहीं? See, it's a very intense journey, very intense. खाली शास्त्रों को पढ़ लेने से जर्नी नहीं होगी, बिकॉज जर्नी इज इनसाइड. आपके माइंड के अंदर ये जर्नी चलती है, शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होती.
और सत्संग की जरूरत कहाँ है ये भी समझें। सत्संगों की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो किसी के आने से आप लोगों की नजरें वहां हो जाती है ना, ये क्या बताता है मालूम है? कि अभी सत्संग की महिमा है। प्रभाणु देव ने अपने वैष्णवमृत के पीछे उपदेश छाया के अंदर ऐसा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग डिस्कस करते थे कि कोई सत्संग में आवे, कोई सत्संग में તમે બેઠા હો અને ત્યારે બાજુમાં કોઈ ચાલતું હોય અને એના પોકેટમાંથી માચિસની ડબ્બી પડી જાય, માચિસની ડબ્બી, you understand? અને ત્યારે સદગુરુ પરથી દ્રષ્ટિ હટીને या જ્ઞાની પરથી દ્રષ્ટિ હટીને માચિસની ડબ્બી ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો માચિસની ડબ્બીની કિંમત સદગુરુ કરતા વધારે કરી એ સમજી લેજે। હવે આ જીવને કયા ભવે મોક્ષ થશે એ નિર્ણય તમે કરો। એક બહુ ઇન્ટેન્સ વાતો લખી છે કે કોઈ આવે ને એને સાડી જોઈએ, એના કપડાનો રંગ જોવા માટે આપણી આંખો આમ ફરે, એનો મતલબ કપડા ઉપર જ્ઞાની કરતા વધારે મોહ છે। આ જીવનો ક્યારે મોક્ષ થશે? ક્યારે થશે? હજી અડધું પૂતગલ પરાવર્તનમાં ન કહેવાય, એટલા નાના કાળમાં એટલા મોટા કાળમાં પણ નથી આવ્યો। કાંઈ પણ બીજાને જોવાની વૃત્તિ થાય છે ને એનો મતલબ બતાવે છે કે તમારી વૃત્તિ ક્યાં છે, તમે જ્ઞાની સાથે કનેક્ટેડ નથી। એટલે જ તમને વારે વારે ત્યાં કોણ આવે છે, કોણ જાય, આપણને શું લેવા દેવા કોણ આવે છે, કોણ જાય છે, તમારા જોવાથી કંઈ બદલાવાનું નથી। એટલે સત્સંગની અંદર ઇટ ઇઝ મેક શ્યોર કે તમે બીજાના પદ સામે પણ તમારી નજર જાય છે ને, જ્ઞાની તરફથી દ્રષ્ટિ હટે અને આ બેનના પદ સામે જાય ને, મતલબ જ્ઞાની કરતા વધારે આ $50 પર્સની મહિમા કરી એમ કહેવાય। આ સમજાય છે? આ વાત બેસે છે કે નહીં? અને આ જેની વૃત્તિમાં હજી મહિમા $50ની હોય, જ્ઞાની કે વચનની ન હોય, એ કયા ભવે મોક્ષે જાય? કૃપાળુ મૂકી દીધું આપણા ઉપર, તમે નિર્ણય કરજો। અને એના માટે છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં આપણે પૂજાનો વિધાન જોઈએ ને, મંદિરના વિધાનમાં પણ એક જે 10 ઓલી આવે છે, 10 ત્રિક આવે છે। 10 ત્રિક તમે લોકો કરો કે નહીં? 10 ત્રિક, એમાં એક ત્રિક ટ્રિપ્લેટ્સ, એક ત્રિક એવી છે કે જ્યારે તમે પરમાત્માના મંદિરમાં પ્રવેશ કરી જાઓ એના પછી ત્રિદિશા દ્રષ્ટિ વર્જન ત્રિક, બીજી 3 દિશામાં તમારી દ્રષ્ટિ જ ન જાવી જોઈએ। જ્યારે તમે પરમાત્માની મંદિરમાં એની સામે આવી જાઓ એના પછી 3 દિશા, અહીંયા અહીંયા અને અહીંયા, એ 3 દિશામાં તમારી દ્રષ્ટિ જાય તો ત્યાંથી હવે પરમાત્માની સામે જેને પુણ્ય બંધાવવાનું હતું એના બદલે જીવ પાપ બાંધવાનું સ્ટાર્ટ કરે। આ બધી ટ્રીકને બધું ખબર છે કે નથી ખબર? એટલે જ મંદિર આદિમાં પહેલાના જે આચાર્યોએ શરૂઆત કરાવી ઓનલી મૂળ નાયક, પણ ધીરે ધીરે બધું વધતું ગયું અને તમારી દ્રષ્ટિ જવાની જ છે બીજા બધામાં। ત્યાંથી જ તમને પુણ્યના નિમિત્ત હતા બધા, પણ બધા જ પાપના નિમિત્તો બનતા જાય છે। આ બધું કહીને મારે તમને ડરાવવું નથી, પણ આ બધું કહીને મારે તમને જાગૃત કરવા છે કે સમજીને તમારી ક્રિયા કરો। જ્યારે જ્ઞાનીના સમાગમમાં હો એટલે અમારે ત્યાં તો સિસ્ટમ જ છે કે એકવાર સત્સંગ સ્ટાર્ટ થાય એટલે ગેટ્સ ક્લોઝ, કારણ કે કોઈ આવે નહીં, જેને ખરેખર ભૂખ છે 5 મિનિટ પેલું આવવાનું જ છે। આપણે કોઈ દિવસ ફ્લાઇટ માટે લેટ થઈએ છીએ, પણ અહીંયા આપણે આ સુવિધા આપી છે ને એના કારણે સત્સંગથી પુણ્ય બંધાવાના બદલે, પાત્રતા બંધાવાના બદલે ઉલટાનું આપણે પાત્રતા આપણી ઘટાડતા જઈએ છીએ। તો સંવેગ હતો શું? ઉત્સાહપૂર્વક જ્ઞાનીના વચનનું શ્રવણ। નંબર 2, જ્ઞાની તત્પર રાગ પૌગલિક પદાર્થ કરતા વધારે। અને નંબર 3, બધા ધાર્મિક ક્રિયાનું અનુષ્ઠાનનું અર્થ સમજીને કરો। અર્થ ન આવડે તો કોઈને પૂછો, તમારી પૂછવાની જિજ્ઞાસા હશે તો આપોઆપ અર્થ સમજાવવા કોક આવી જશે, બટ આસ્ક। અને એનું પરિણામ મેં આપને લોકોને બતાવ્યું શું થાય છે। એનું પરિણામમાં અનંતાનુબંધી કશાય તૂટે છે, ત્રીજા ભવે મોક્ષાદી થાય છે। નેક્સ્ટ હતું નિર્વેદ, જે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જોયું। નિર્વેદ એટલે કંટાળવું, કોનાથી? પોતાનાથી જ હવે કંટાળવું। હવે આ પરિભ્રમણનો થાક લાગવો એ છે નિર્વેદ। અને એ કેવી રીતે પ્રગટ થાય? નંબર 1 ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, અને નંબર 2 ચિંતન ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન બતાવેલું। નંબર 2 લાઈફમાં
हायर पर्पस। Higher. जीवनના પ્રત્યેક કૃત્યો, why don't you people write it? हाँ, खाली it is not a talk class, it is an introspection thing. हायर पर्पस होना चाहिए लाइफ ની અંદર. તમારે સ્મોલ એક્ટિવિટીઝ માં બી પર્પસ શુડ બી હાયર. અને એમાં તેના નિષ્કામ ભાવ લઈ આવો કે જે પણ કાર્ય હું કરું છું એમાં કોઈ કામના એટલીસ્ટ મારા માટે નહીં, બીજા બધા માટે હોય અને બીજાનો લાભ થતો એમાં મારું બી થઈ જાય તો ઇટ્સ ઓકે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ફોર મી. આ હાયર પર્પસ આવશે એટલે આપોઆપ પરિગ્રહ આદિ પ્રત્યેનો ભાવ આપણો ઓછો થશે. કશાય આદિની પણ આપણે વાત કરી. एक Now- क्वेश्चन है। हाँ बोलो. तो जैसे हम इस संसार में काम करते हैं और काम करने पर एक सैलरी की अपेक्षा करते हैं, और फिर जैसे मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, तो अभी 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे लगता है मैं अभी 2 लोगों का काम कर रही हूँ, तो फिर एक्सपेक्टेशन आता है कि मैं 2 लोगों का काम करें तो मेरी salary ओके, बढ़नी गो एंड चाहिए। फाइंड आउट. देखो, या तो अपने बॉस को कहो कि मेरा सैलरी बढ़ा दे. इफ इट इज पॉसिबल, गुड. अगर आप देख रहे हो आप ज्यादा लोगों का काम कर रहे हो, यू आर मोर कॉम्पिटेंट है आप, तो गो एंड टॉक टू योर बॉस. अगर वो करते हैं फाइन, नहीं तो हैव दिस करेज टू फाइंड अनदर जॉब. लेकिन ये जो do you see this as a greed or fairness, It is or not, no, it is not a who greed. I don't have a higher It is a purpose? judgmental way of living the life. You should always judge yourself, ना क्या राइट है क्या रॉन्ग है. उसको आपको लगता है आपके लेवल का इंसान को इतना सैलरी मिलना चाहिए और इतना नहीं मिल रहा, गो एंड हैव करेज टू टॉक. हो सकता है आपका बॉस वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सके कि नो ये ऐसे नहीं ऐसे, एंड विल बी कन्विंस्ड. हो सकता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दे भी दे आपको, तो यू विल बी कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है इतना लेवल का मेरे को इंक्रीमेंट मिल गया. बट हैव द करेज टू टॉक आउट योर हार्ट टू द अदर पर्सन. जो भी हाईएस्ट कॉमोडिटी वहाँ पर है पर्सन रिलेटेड, उसके आगे बात जरूर करो अगर आपको लगता है, ठीक है ना. और जब हम जॉब वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी हायर पर्पस, जैसे सुबह ही बोला कि एटलीस्ट 5%, हमारे शास्त्रों ने इतना तो सम्मत किया ही है कि आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो 5 रुपए आप हायर पर्पस के लिए, कोई डोनेशन, कोई चैरिटी, कोई गुड डीड के लिए उसको पहले अलग कर दो. इंसान को क्या लगता है जब मेरे पास इतने जीरोस होंगे ना अकाउंट में, पीछे इतने जीरोस, 8-10 जीरोस, उसके बाद में मतलब एक के आगे इतने जीरोस होंगे, तब से मैं डोनेशन शुरू करूंगा. लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, जिंदगी का अनुभव भी है कि जो इंसान 1000 रुपए में दान नहीं कर सकता ना, वो 10 करोड़ में भी नहीं कर सकेगा कभी. मेक श्योर. इसलिए लेकिन हमारा लोभ क्या होता है, जरा 10 करोड़ हो जाए ना, उसके बाद में 2-4 लाख देने वाला हूँ ना, कहाँ नहीं देने वाला. लेकिन जो 1000 में से 5 रुपए नहीं निकाल सकता, वो 10 करोड़ में से भी 5 लाख नहीं निकालेगा, कभी भी नहीं निकालेगा. इसलिए पहले अभी से आदत डालो इस बात की कि तुम्हारे 1000 में से 5 रुपए, 100 में से 5% तुम्हारा निकलना ही चाहिए. हायर पर्पस. और सैलरी की अपेक्षा से काम मत करो. इट इज अ रिजल्ट मिलने ही वाली. सैलरी की अपेक्षा से, उसके एक्सपेक्टेशन से काम मत करो. वो तो जैसे मंत्र होगा, इट इज अ रिजल्ट मिलने ही वाली है. लेकिन काम इस तरह से करो कि मेरे काम करने से कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी कंपनी को बेनिफिट हो. कल ही मैं इनसे कह रही थी, ऐसे काम करो कि आपके जो जूनियर्स है, जिन्हें हमेशा कुछ ना कुछ थ्रेट होता है, इनसिक्योरिटी होती है जॉब प्लेस में, तो वो आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस से आप उन्हें हेल्प करो. उसके लिए भी तो हम जा सकते हैं ऑफिस में. सैलरी इज द एंड प्रोडक्ट, वो तो मिलने वाली है. लेकिन हम जाए तो दूसरों को राहत मिले. यहाँ तो हम, जो सीनियर होता है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करता है जूनियर को, isn't it? तो हमने वो एक्सप्लॉइटेशन फेस की है, लेकिन अब हमारे जूनियर्स ये एक्सप्लॉइटेशन को फेस ना करें. आई एम देयर, मैं धार्मिक इंसान तब हूँ, ठीक है. इस तरह से यू हैव टू ऐड ऑन, कीप ऑन एडिंग हायर पर्पस इन योर लाइफ. इतना तो होगा कि नहीं होगा. और तुम्हें ना समझना है ना, तो ड्रॉप मी अ मेल. मैं तुम्हें बताऊंगी कि घूमने जाना है, वेकेशन के अंदर भी हायर पर्पस कैसे डाला जाए. आई विल टेल. नेक्स्ट कम्स द सूत्र ऑफ धर्म श्रद्धा. धर्म श्रद्धा का क्या अर्थ निकालते हैं? धर्म श्रद्धा यानी क्या? Faith, faith in trust,
જ્ઞાનીના વચનમાંથી જ્ઞાનીના વચન પર ભરોસો થવો. Trust that this person is going to take me to the next level. Trust, very good. Trust this person that they will take you to the next level. ધર્મ શ્રદ્ધા. જ્યારે તમે કોઈ જ્ઞાનીને સાંભળો, બધી વાત એ જ્ઞાની સાથે જ રિલેટ થશે. સંવેદ પણ જ્ઞાની સાથે રિલેટ થશે, નિર્વેદ પણ થશે, ધર્મ શ્રદ્ધા પણ અને શુશ્રૂષા પણ. જ્યારે તમે કોઈ જ્ઞાનીના વચનને સાંભળો તો એ વચનને સાંભળીને, જો અત્યારના બી હું કાલે 2 કલાક બોલી, આજે સવારે 1.5 કલાક બોલી, અત્યારે 1.5 કલાક બોલીશ, તો આટલા 5 કલાક સાંભળીને તમને કઈ બધું નથી યાદ રહેવાનું. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? 5 કલાક મેં જે બોલ્યું તમને બધું નથી યાદ રહેવાનું, પણ તમારા કોપીની અંદર કોઈ પણ પોઈન્ટ્સ તમને ગમ્યા હોય ને, તમને ગમ્યા હોય કે હા આ બરાબર છે, આ મારાથી થશે, હું કરી શકીશ, કરવાની કોશિશ કરીશ, એ જ્યારે તમે લખી લો એ પોઈન્ટ્સને અને યુ હેવ ધેટ ફેથ કે આઈ કેન ડુ ધીસ, એને ધર્મ શ્રદ્ધા કહેવાય છે. બાકી તો આપણે મોટી મોટી વાતો કરીએ, મને ભગવાન મહાવીરના વચનમાં શ્રદ્ધા છે, પણ એવું આચરણ નથી, તો શ્રદ્ધા કામની જ નથી કહે. જ્ઞાનીના વચન જ્યારે પણ આપણે સાંભળીએ, હું આ લોકોને કહેતી હું ટ્રિક ઓફ ટેકિંગ અ સત્સંગ, રાઇટ ડાઉન 3 ટેક અવે પોઈન્ટ્સ. ટેક અવે જ્યારે પણ જ્ઞાનીના વચન સાંભળીએ ત્યારે 3 ટેક અવે પોઈન્ટ્સ એમાંથી આપણે લખવાના કે મારે શું કરવું છે, અને then having that faith कि अब यही मेरे लिए मोक्ष का मार्ग है, I can do this thing. धर्म श्रद्धा का अर्थ किसी और का श्रद्धा नहीं होती. धर्म श्रद्धा का अर्थ होता है ज्ञानी के जो वचन मैंने टेक अवे में लिखे हैं वो मैं कर सकती हूँ, ये श्रद्धा. समझ में आ रहा है डिफरेंस? धर्म श्रद्धा हम ऑलवेज इस रेफरेंस से यूज करते हैं, किसी और पर भरोसा, लेकिन किसी और का पर जो भरोसा है वो ज्यादा लंबा टिकता नहीं है. इसलिए अपने लिए जो भी 3 टेक अवे पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ ये मुझे 3 सत्संगों में मैंने जो सुना उसमें से 3 चीजें मेरे लिए काम की है, ऐसा तो हम कर सकते हैं. मुझे आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड देन हैविंग दैट फेथ दैट आई कैन डू इट. इससे डाला है भगवान महावीर ने धर्म श्रद्धा के अंदर. ये नहीं कि तुम्हें उत्तराधर्म सूत्र पर भरोसा है, उससे क्या होगा, तुम्हारे जीवन में क्या क्रांति है. तुम्हें उत्तराधर्म सूत्र पर भरोसा है, तुम्हें दशकालिक सूत्र पर भरोसा है, उससे तुम्हारे जीवन में क्या रूपांतरण आया, क्रांति क्या है, व्हाट इज द रेवोल्यूशन इन योर लाइफ? नथिंग, इजंट इट? लेकिन जब किसी ज्ञानी को सुनते हो, टेक अवे पॉइंट्स बनाते हो और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति आएगी कि नहीं आएगी, रेवोल्यूशन आएगा कि नहीं. इस रेवोल्यूशन को श्रद्धा का है. श्रद्धा का मतलब भरोसा करना नहीं होता, श्रद्धा का मतलब ये होता है भीतर से कुछ पलट गया, और उस पलटने के लिए शुरुआत कहां से होगी, कहां से होगी. जैसे एक है कि तुमने अब तक बहुत कुछ सुना है स्विट्जरलैंड के बारे में कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है पहाड़ है, वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ है, वहाँ पर ऐसी वैलीज हैं और नदियां हैं, ये सब सुना है. हजारों प्रकार की डिस्क्रिप्शंस आपने स्विट्जरलैंड के लिए सुनी है, वो एक बात है, वो कहाँ गया, श्रवण के खाते में. लेकिन एक क्षण स्विट्जरलैंड जाके देख लो, जिस मोमेंट आपने स्विट्जरलैंड आप पहुंच गए और जाके अपनी आंखों से देख लिया वह दृश्य, इसे क्या कहते हैं, श्रद्धा. फर्क समझ में आया? एक है श्रवण, श्रवण के अंदर तुम लाखों माहितियां इकट्ठी कर लो लेकिन वो श्रवण ही रहेगा. और एक है जाके स्विट्जरलैंड को देख लिया, अब ये दर्शन हुआ ना जहां उसका इन अपनी आंखों से, वहां उसको कहते हैं श्रद्धा. ज्ञानी के वचन से, यानी अब श्रद्धा किस पर आई, वो जो हजारों बातें सुनी थी ना उस पर श्रद्धा आ गई. इसी तरह आप ज्ञानी के वचन को सुनते हो लेकिन कुछ भी टेक अवे पॉइंट्स नहीं बनाते, तो क्या होता है, आपने सुना तो बहुत है, श्रवण तो बहुत किया है, लेकिन टेक अवे पॉइंट्स नहीं बनाए और उस पर वर्क नहीं किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. यू हैव नॉट ट्रैवल्ड टू स्विट्जरलैंड. और जब ट्रैवल ही नहीं किया, 3 काम जो तुम्हें अच्छे लगे, 3 टेक अवे पॉइंट्स के ऊपर तुमने वर्क ही नहीं किया, तो क्या होगा, श्रद्धा के अंदर ये श्रवण कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. और जहां तुम्हें एक बात पर श्रद्धा है, स्विट्जरलैंड में जाके बर्फ के पहाड़ आपने देख लिए, तो वो जितनी भी बातें सुनी थी उन सब पे श्रद्धा एक साथ आ गई कि नहीं. 10 सालों से सुन रहे थे लेकिन एक बार दृश्य देखा तो 10 सालों की बातों का भरोसा आ गया कि नहीं.
इसी तरह ज्ञानी के वचन सुनते हो, साथ में उसे जीवन में अप्लाई करो। अप्लाई करना इज योर जर्नी फ्रॉम अमेरिका टू स्विट्जरलैंड। अमेरिका से स्विट्जरलैंड तक जाने की यात्रा है ना, वो यहाँ इस मार्ग में भी एप्लीकेशन की यात्रा है। और अप्लाई क्या करोगे? जो 3 टेक अवे पॉइंट्स लिए हो, क्या करोगे? सारा तो जितना मैं बोल रही हूँ सारा तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आपको अपने लिए जो अच्छा लग रहा है वो 3 पॉइंट्स लेकर उसके ऊपर वर्क करना, चलना शुरू कर दो। और चलकर आप जहां पहुंचोगे ना, उसे स्विट्जरलैंड कहा या उसे मैंने श्रद्धा कहा, और जहां एक मार्ग पर चलकर एक अनुभव करके श्रद्धा आई, वहां सारे वचन के प्रति अपने आप श्रद्धा करी जाती है। इसलिए हम लोग श्रवण को श्रद्धा मानते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। श्रवण अलग बात है। श्रवण में टेक अवे पॉइंट्स लेने हैं और श्रद्धा में उस पर चलना है, रोज 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 उसका प्रयोग करना है, और फिर जहां तुम पहुंचोगे उस टेक को श्रद्धा कहते हैं। धर्म श्रद्धा का मतलब होता है श्रवण के अंदर हमें जो अपने आत्म कल्याण के लिए उपयोगी है वो करने का पॉइंट लिखना, और लिखकर उसके अकॉर्डिंगली करने लगना, इसको धर्म श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि क्रांति, रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। जब ये धर्म श्रद्धा हमारे जीवन में आती है, धर्म श्रद्धा यानी किसी ज्ञानी पर भरोसा होना नहीं, उसे विश्वास में डालो, लेकिन धर्म श्रद्धा यानी जो कहा है वो मैं कर सकता हूँ, इसका निर्णय होना, इसे धर्म श्रद्धा कहते हैं। और जब ये धर्म श्रद्धा आती है तो इसका परिणाम इतना खूबसूरत है, इसका रिजल्ट जो द्राविड़ सूत्र बोलता है वो इतना खूबसूरत है कि तुम्हारे मोह भाव की क्षीणता होती है। आप सीधा नहीं कह सकते मेरा मोह कम करना है मुझे, नहीं, दैट इज अ रिजल्ट। You cannot work on the result. Yes, you can work for the process to attain the result. लेकिन प्रोसेस क्या है? धर्म श्रद्धा, वचन सुनकर उनका उपयोग करना अपने जीवन में और चेंज को फील करना, ये धर्म श्रद्धा है। और उसका परिणाम ये है तुम्हारा मोह भाव, चारित्र मोह, दर्शन मोह, दोनों प्रकृति तुम्हारी धीरे धीरे मंद होती जाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे हम दर्शन मोह को कम करें, कैसे हम चारित्र मोह को कम करें, कैसे हम मोहनीय, क्योंकि कहते हैं ना मोहनीय ही राजा है, मोहनीय कर्म राजा है, इसको हम कैसे कम करें? ओके, मोहनीय कर्म को कम करना वो परिणाम है, उसका पूरा मार्ग कहाँ है? धर्म श्रद्धा के अंदर। और इसलिए धर्म श्रद्धा भी आती किसके बाद है? संवेग और निर्वेद के बाद। समझ में आया? सीधा धर्म श्रद्धा नहीं रखा, पहला पॉइंट, पहले क्या रखा? संवेग, फिर क्या रखा? निर्वेद। संवेग निर्वेद पूर्वक यानी उत्साह किसके प्रति? ज्ञानी, और बोरियत किसके प्रति? खुद के प्रति। उत्साह और बोरियत पूर्वक जब तुम ज्ञानी को सुनते हो, अब तुम अपने टेक अवे पॉइंट्स बना सकते हो, और अब तुम उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, और अब तुम्हें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे धर्म श्रद्धा कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? और इससे सीधा हमारा मोह टूटता है। इसलिए कहते हो कोई सद्गुरु चाहिए। कितनों को सुनोगे तो और कितनों के टेक अवे पॉइंट्स लोगे, क्योंकि कई बार तो म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एक कहते हैं भक्ति करो, एक कहते हैं ध्यान करो, एक कहते हैं खाली सत्संग सुनो, एक कहते हैं जप करो, तुम कितनों के टेक अवे पॉइंट्स बनाओगे? और वो कोई भी गलत नहीं है, वो सारे राइट है, लेकिन जब तुम्हें यात्रा करनी है तो तुम्हें अपना निर्णय खुद करना पड़ेगा। हमें इंडिया से ट्रैवल करना है, यूएस से आना है, तो कितनी फ्लाइट्स मिलती होगी? कितनी मिलती होगी? कम से कम 50 ऑप्शन है हमारे पास, डायरेक्ट फ्लाइट के भी, इनडायरेक्ट फ्लाइट के तो और ज्यादा ऑप्शंस है। 100 ऑप्शंस में सुन लो, लेकिन जब मुझे यात्रा करनी है तो आई हैव टू डिसाइड फॉर वन रूट, इजंट इट? जब मैं एक रूट पर डिसाइड करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी 99 गलत है, इसका मतलब ये हो गया क्या? नहीं, मुझे ये सूट करता है, मेरे बजट को सूट करता है, मेरा ट्रैवल पीरियड कम करता है, ये सब कुछ मुझे सूट करता है, तो मैं इस एक रूट को सिलेक्ट करती हूँ। इसलिए कहती हूँ पहले 3 महीने तक खाली सुनो, सुन के तुम्हें लगता है कि हाँ इससे मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, देन फॉलो देयर पाथ। कोई लोग ध्यान पहले लाएंगे, भक्ति बाद में लाएंगे,
कोई लोग भक्ति पहले लाएंगे, ध्यान बाद में लाएंगे, लेकिन आप अपना निर्णय करो आपको पहले क्या पसंद आ रहा है, एंड देन वर्क ऑन दैट पाथ। समझ में आता है? इसलिए पहले आया संवेग, फिर आया निर्वेग, फिर आई धर्म श्रद्धा। एक ज्ञानी के वचन को सुनकर टेक अवे पॉइंट्स जरूर लो, डोंट मिस इट। 3 पॉइंट कोई भी ऐसे लिख के जाओ कि जो तुम्हें लगता है कि मुझे अब से इसको फॉलो करना है, एंड देन फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। बाकी 5 घंटे में उन्होंने क्या बोला सोचो भी मत उसके बारे में, नो वर्क ओनली ऑन दीज 3 पॉइंट्स। और उससे तुम्हारे जीवन पर भरोसा रखो। किस पर? अपने पर। अपने पर भरोसा रखो कि आई कैन डू दिस। बार बार फेल हो जाओगे, लेकिन बार बार अपने को उत्साह दो, नहीं यही मेरा पाथ है, आई हैव टू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने पर वर्क करने के बदले हम ज्ञानी बदल लेते हैं। ये ज्ञानी के मार्ग से ना कुछ मिला नहीं। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं। लास्ट कम्स शुश्रूषा। शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, लेकिन चल रहा है। हाँ हाँ, आप कुछ भी लिखो इस वक्त, बस वो डायरी किसी और के हाथ में नहीं पहुंचनी चाहिए। It should be your personal। किस लैंग्वेज का? तो षटकोण का श, ये शुश्रूषा हिंदी में तो नहीं मिलता, श्रूषा मिलता है, लेकिन शुश्रूषा नहीं मिलता है, इसलिए ये अर्धमागधी से ही डिराइव हुआ है। लेकिन फिर अब ये हाइब्रिड वर्ड है, पूरा अर्धमागधी भी नहीं है और पूरा हिंदी भी नहीं है। तो भी भूलता नहीं है। हाँ, तो भी भूलता नहीं है। हाँ, तब बोलो क्या प्रश्न किसका है? कुछ बोल रहे थे यहाँ से? ओके, शुश्रूषा धर्म का ये चौथा आधार। पहला कौन सा था? संवेग। दूसरा, तीसरा धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा। चौथा शुश्रूषा। शुश्रूषा का सबसे बढ़िया जो मीनिंग होता है, गहन बढ़िया सभी होते हैं, ज्ञानी के वचन को सुनने की तीव्र इच्छा। कहा चारों में ज्ञानी है, चारों, और ये भगवान की वाणी है कि जिसके अंदर वो ज्ञानी की, प्रत्यक्ष ज्ञानी की कितनी इंपॉर्टेंस बता है। एक है कि आयोजन हुआ है और आप सुनने जा रहे हैं और आप उत्साह में है, वो कहाँ आया? संवेग में। लेकिन एक है आयोजन नहीं है, कोई आयोजन नहीं किया सत्संग का, लेकिन फिर भी बस आपको सुबह से अंदर में उछल रहा है, आज तो मुझे ना इनको सुनना ही है। अपने जो भी सद्गुरु है, ज्ञानी है, कभी बस फटाफट सारा काम खत्म हो और मैं सुनने बैठूं, या काम खत्म ना हो। ये इधर प्रभु वगैरह को हम जानते हैं, वो काम करते करते भी सुन रहे होते हैं, isn't it? खाना बनाते बनाते भी सामने टीवी पर चल रहा होता है। इस तरह से व्यवस्था है घर की कि खाना बन रहा है और सामने टीवी चल रहा है, तो सत्संग चल रहा है। क्यों? कहीं कोई कोर्स पूरा करना है लोगों को? नहीं, यही कहते हैं कि बस वो देखने की आपको इतनी इच्छा होती है, सुनने की इतनी इच्छा होती है कि वो काम करने के साथ साथ, अब खाना बनाने में क्या करना है तुम्हें? इट्स अ मैकेनिकल वर्क। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बुद्धि लगानी है, तो थोड़ी बहुत बुद्धि खाना बनाने में लगाई और बाकी सारी सुनने के अंदर। शुश्रूषा यानी जब आयोजन ना हो तब भी तुम्हारे अंदर ये उमड़ का यू अंडरस्टैंड, ऐसा उल्लास अंदर में आ रहा होना, सुनना है, बस मुझे वहीं जाना है, वही सुनना है, ये उल्लास जब तुम में आने लगता है, इसे शुश्रूषा कहा जाता है। शुश्रूषा यानी आयोजन नहीं है तब भी सुनने की तीव्र इच्छा। और सबसे ज्यादा उपयोग ना इन कानों के माध्यम से ही होगा। 5 इंद्रियों जब हम आते हैं तो हमें कौन सी आनंद इंद्रिय मिलती है? 4 इंद्रियों में, हाँ 4 इंद्रिय तक कान नहीं होते, 5वीं इंद्रिय में आते हैं और आते ही हमारे पास कान आ जाते हैं। मनुष्य भोग को दुर्लभ इसलिए भी कहा है क्योंकि यहाँ तुम्हें ये इंद्रिय मिल गई और ये इंद्रिय से ही श्रवण संभव है। तुम सुन सकते हो और सुनकर अपने लिए आत्म कल्याण का मार्ग डिसाइड कर सकते हो। शुश्रूषा का अर्थ होता है ज्ञानी के वचन को सुनने की तीव्र इच्छा। आयोजन है कि नहीं है? जैसे कई बार होता है ना, घर पे रसगुल्ला नहीं है लेकिन खाने की इच्छा, तीव्र इच्छा, तो कैसे भागते हैं उस तरफ? इसी प्रकार आयोजन नहीं है लेकिन सुनने की तीव्र इच्छा, ये शुश्रूषा में। और इसको डाला कितने के बाद? 3 के बाद, लास्ट। क्योंकि
बिना संवेग और निर्वेद और धर्म श्रद्धा की शुश्रूषा पहले आ गई ना, तो ठीक है, वो तुम्हारे किसी व्यक्ति के प्रति का आकर्षण हो सकता है, जो थोड़े ही टाइम में वो व्यक्ति के प्रति का आकर्षण तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पात्रता भी होनी चाहिए, संवेग, निर्वेद, धर्म श्रद्धा, अब उस व्यक्ति को सुनने के प्रति का आकर्षण। उसके बाद दूसरी बात बताते हैं, जैसे शुश्रूषा आती है तुम्हारे जीवन में, शु यानी सु, एक्चुअली सु वर्ड है, सु मतलब अच्छा, श्रूषा यानी किसी भी व्यक्ति में अच्छा देख पाने की क्षमता, गुण देख पाने की क्षमता तुम्हारी बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई व्यक्ति हो कि जिसमें कोई गुण ही नहीं है। तो तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ जीते हो ना, उनमें गुण देखने की क्षमता तुम अपनी बढ़ाओ, इससे शुश्रूषा बढ़ती है। गुण ग्राहकता की दृष्टि, ऐसा मैंने पहले बोला हुआ है। गुण ग्राहकता, हर किसी में, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Isn't it? Do you agree or not? पत्नी में दिखेगी, बच्चों में दिखेगी, इवन गवर्नमेंट में दिखेगी, जहाँ हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी अनकंड्यूसिव लगती हैं। हमें वेदर में प्रॉब्लम दिखेगी, अरे ये वेदर क्यों इतनी ठंड है, क्यों इतनी गर्मी, आज क्यों सुबह बारिश आ गई। हर जगह हमें कहीं ना कहीं दोष देखने की आदत है, दोष दृष्टि हो गई है हमारी। शुश्रूषा कब आती है हमारे अंदर? जब हम लोगों की दृष्टि में गुण ग्राहकता आती है। कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति में कोई गुण तो है ना, उसको तो हम देख सकते हैं ना। कि बस राइट नाउ भी वो गुस्से हो रहे हैं, ओके छोड़ो के एंगर के गुण को, लेकिन वो तारीफ करने में कितने अच्छे हैं ना, किसी को अप्रिशिएट कितना अच्छे से करते हैं ना। तुरंत उसके दोष पर से दृष्टि हटाकर गुण के ऊपर ले आओ। इससे क्या होता है, ये शुश्रूषा तुम्हारी बढ़ाते हैं, तुम्हें गुण देखने की क्षमता आती है। और इसी से क्या होगा कि तुम्हें अभी आदत क्या पड़ गई है, कोई भी ज्ञानी आते हैं ना, उसमें फ्लॉज ज्यादा देखते हैं। फ्लॉज समझते हैं? बुराई क्या है ना, वो ज्यादा हमारी दृष्टि पड़ती है। उनमें अच्छाई क्या है ना, ये देख ही नहीं पाते, और इसलिए हम प्रत्यक्ष को चूज नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष को चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे दोष बताएगा, आपकी नजर बाहर क्यों गई और उसके बाद एक बार भी नहीं गई। जैसे ही कोई दोष बताएगा तो अंदर अहंकार को अखरेगा कि अरे भाई ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हमारी नजर गई उधर तो गई, लेकिन किसी ने बताया तो उसके बाद तुरंत वहां स्टॉप हो गए ना। अब कोई भी आ रहा है, जा रहा है, हिल रहा है, मैं देख रही हूँ जिसको मैंने मैसेज देना था उसकी नजर नहीं हिल रही। कितनी जल्दी लाइफ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कितनी फास्ट, isn't it? लेकिन हमें प्रत्यक्ष नहीं समझ में आते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शुश्रूषा की कमी है ना। तो हम हर प्रत्यक्ष ज्ञानी के अंदर, गुरु के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। और मैंने सुबह के सत्संग में कहा, तुम्हें डॉक्टर क्यों चाहिए? डॉक्टर क्यों चाहिए? बीमारी हटाने के लिए। लेकिन अब वो बीमारी हटाते हटाते तुम्हारा लक्ष्य ही बदल जाता है कि अरे ये डॉक्टर का क्लिनिक तो बहुत छोटा है, इस डॉक्टर के पास लोग बहुत थोड़े आते हैं, या इस डॉक्टर का अपनी पत्नी से डाइवोर्स हो गया, तुम्हें क्या लेना देना उन सब चीजों से। लेकिन जैसे ही तुम गुरु के पास आते हो ना, तो पहले तो तुम्हें गुरु बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर शुश्रूषा नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? तुम तुरंत गुरु के जो दूसरे वीक पॉइंट्स है ना, भाई उनका भी उदय है, विचरे उदय प्रयोग, वो भी अपने कर्म प्रकृति के अधीन है, तो वो भी वैसे जी रहे, लेकिन तुम तुरंत दूसरी चीजें देखना शुरू करोगे। तुम्हें देखना क्या चाहिए था कि इनके वचन के कारण मुझमें विकास होता है ना, बस इतना। इसलिए श्रीमद् बहुत अच्छा कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं ना वो सुनो, क्या करते हैं ना ये मत देखो, क्योंकि उनका करना जो है ना उनके कर्मों के अधीन है, और उनका कहना जो है ना वो उनकी दशा में से बाहर निकल रहा है। इसलिए ज्ञानी क्या कर रहे हैं वो उनकी कर्मों की प्रकृति है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ज्ञानी क्या कह रहे हैं वो उनके आत्मज्ञान की प्रतीति है, उसमें से क्या है, फॉलो व्हाट दे आर सेइंग, नॉट व्हाट दे आर डूइंग, डोंट क्रिटिसाइज। शुश्रूषा का अर्थ होता है पहला, सुनने की तीव्र इच्छा। आयोजन है और सुनना पड़ता है ये नहीं, आयोजन नहीं है, तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि रोज सत्संग देखो, लेकिन फिर भी बस दिल है कि मानता नहीं, बस ये सिचुएशन आ जाती है। इसलिए मैं कुछ कुछ तो देती हूँ ना
पॉइंट्स कुछ कुछ होता है, तुम्हारे को मन में कुछ होता है कि नहीं, किसी को देख के अपूर्व भाव कुछ कुछ होता है, या दिल है कि मानता नहीं, तुम्हारा मन ही करता है कि मुझे यही देखना है, यही देखना है। दैट इज शुश्रूषा। उससे क्या होगा, गुण ग्राहकता की दृष्टि तुम्हारी बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर ये दृष्टि आती जाएगी। और इसका परिणाम क्या है, बहुत ही खूबसूरत परिणाम जो उत्तराधीन सूत्र में लिखा है, परमार्थ विनय की प्राप्ति होती है। यानी इसका मतलब क्या, परमार्थ विनय का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके सामने 3 नमस्कार कर लेते हैं, ये नहीं। परमार्थ विनय की प्राप्ति का मतलब ये होता है, गुरु जब भी कोई बात करते हैं तो उस बात का आशय राइट ढंग से तुम पकड़ पाते हो, परमार्थ विनय इसे कहा जाता है। जब भी वो कोई बात कर रहे हैं तो उस बात का जो राइट डायमेंशन है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, इसे कहा जाता है परमार्थ विनय की प्राप्ति होती है। अदरवाइज क्या होता है, गुरु कह रहे, इशारा कहीं और कर रहे हैं और तुम कहीं और दिशा में ही समझ रहे होते हो। लेकिन जब संवेग, निर्वेग, धर्म, श्रद्धा और शुश्रूषा आती है तो गुरु किस नए से, काफी नए है, कितनी अपेक्षाएं हैं, किस नए से कह रहे हैं ना, ये बात आपको बिल्कुल परफेक्टली पता चलती है। कुछ टोक भी रहे हैं तो आप जानते हो इसमें मेरा हित है, उसमें आपका अहंकार उछल नहीं आता। ऐसा परमार्थ विनय तुम्हें शुश्रूषा से प्राप्त होता है। गुरु के वचन का राइट आशय समझ पाना, राइट इंटरप्रिटेशन समझ पाना। अभी तक तुम राइट आशय ही नहीं समझ पाते, क्या कहना क्या चाहते हैं वो यही नहीं समझ पाते, इसलिए उनके ही वचन को उल्टा पुल्टा गोल 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 घुमाकर हम लोग अपने जीवन में घुमाते रहते हैं। लेकिन जब तुम शुश्रूषा में प्रवेश करते हो, परमार्थ विनय की प्राप्ति, दूसरा कहा सुगति मिलती है, यानी आगे नेक्स्ट लाइफ के अंदर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मतलब ऐसी गतियों में नहीं जाओगे नरक और तिर्यंच की जहां तुम्हें धर्म का योग ना मिले, तुम ऐसी ही गतियों में जाओगे जहां धर्म का योग मिले, मनुष्य गति ही तुम्हें प्राप्त होगी। उत्तराधीन सूत्र में ऐसा लिखा है। तीसरा, आज्ञा पालन की सहज मनोवृत्ति, बहुत अच्छा लिखा है, आज्ञा पालन की सहज मनोवृत्ति। अभी तो क्या है, हमें आज्ञा पहले तो लेते ही नहीं, किसी को गुरु मनाते ही नहीं, गुरु मना भी ले जबरदस्ती, अब तो उन्होंने जो आज्ञा दी है ना उसको पालने में बस वो लगता है कर करा के खत्म करो बस। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये शुश्रूषा तुम्हें प्रकट होती है, आज्ञा पालन की सहज मनोवृत्ति, तुम्हारा मन उसी तरफ खींचता है, सहज में सारी आज्ञा पालने की, इट इज बिकम एफर्टलेस फॉर यू। समझ में आता है, एफर्टलेस होने लगता है। अभी तुम्हें एफर्ट्स देने पड़ते हो, अब ध्यान करने का है, ओ अब नित्य क्रम लिखने का है, ओ अब आत्मसिद्धि तो बाकी रह गई, वो तो हुई नहीं, अभी एफर्ट पूर्वक करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे शुश्रूषा बढ़ती है, all your religious activities they become effortless because they are not just mere activities, they play a major role in developing your attitude। और चौथी बात जो उत्तराधीन सूत्र में लिखी है वो ये लिखी है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ये 4 पॉइंट है, कौन से, संवेग, निर्वेग, धर्म, श्रद्धा और शुश्रूषा, जिस व्यक्ति में ये 4 सूत्र पाए जाते हैं, 4 दुर्लभताएं पाई जाती है, वह व्यक्ति दूसरों को भी आत्म कल्याण के मार्ग पर लाने में निमित्त बनता है। तुम्हें लगता है हमारे बच्चे क्यों नहीं आते, यहाँ पर बहुत लोगों से मैं कंप्लेंट सुनती हूँ, हम अपने बच्चों को इतना कहते हैं कि आप लोग आइए सत्संग में आइए या रिलीजियस एक्टिविटीज में, बट दे ऑफन डू नॉट कम। तुम्हारे से प्रभावित होके कोई आएगा ही तभी जब तुम्हारे अंदर ये चारों हैं, संवेग, निर्वेग, धर्म, श्रद्धा और शुश्रूषा। नहीं तो आप कितना भी कहते रहो, कोई आपसे प्रभावित होकर आने ही नहीं वाला, क्योंकि आपके जीवन में उन्हें कोई रूपांतरण नहीं दिखता। तो आप जहाँ जाते हो वहाँ क्यों आए हो, क्यों आए? आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो और खा के आपको लगता है वाओ वंडरफुल, क्या खाना था। आप घर जाके जो लोगों से शेयर करते हो कि आज मैं खाना खाने गया था और बहुत ही बढ़िया था, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन देखकर, आपके बोलने की अदा देखकर, खुमारी देखकर सामने वाले का मन करेगा
ऐसे ही अभी आपके जीवन में संवेग, निर्वेग, धर्म, श्रद्धा, शुश्रूषा नहीं आए, मतलब वो उत्साह नहीं आया, आपके कषाय मन नहीं हुए, तो सामने वाला प्रभावित होगा कैसे? वो यही सोचेगा ना, जहाँ ये ज्यादा है वहां से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम क्यों जाए? इसलिए उत्तराधिक सूत्र ये डिक्लेयर करता है कि जब ये चारों गुण और उसमें भी शुश्रूषा का सबसे ज्यादा बल है, ये जब किसी में आ जाते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति दूसरों को भी इस मार्ग पर लाने का निमित्त कारण बनता है। उपादान जीव का ही होता है, लेकिन निमित्त जरूर बनता है। He becomes a cause to bring others on this eternal path. कोई प्रश्न? 4 सूत्र हमारे खत्म होते हैं। आपने श्रु का मतलब बताया था परमार्थ होने की प्राप्ति हो, और शा नहीं, सु का मतलब परमार्थ होने की प्राप्ति नहीं होता है। शुश्रूषा, सु का मतलब होता है अच्छा, और श्रूषा का मतलब होता है ग्रहण करना। श्रूषा श्रवण नहीं है, ग्रहण, गुण ग्रहण करना, गुण ग्राहकता की दृष्टि। शुश्रूषा का मतलब एक तरफ से श्रवण के एंगल से ये होता है सुनने की तीव्र इच्छा, आयोजन नहीं है तो भी। तुम्हारे गुरु से देखो, गुरु प्रत्यक्ष हो का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा दिन गुरु के साथ ही घूमते रहो, इट इज नॉट दैट। गुरु प्रत्यक्ष है, यानी श्रवण तुम्हारे लिए उनका हमेशा प्रत्यक्ष है। गुरु प्रत्यक्ष मतलब ये नहीं होता, जैसे आपको कंफ्यूजन है ना कि गुरु इतनी दूर हो, हमारे गुरु इंडिया में हो, हम यहाँ हो, तो प्रत्यक्ष का होंगे। प्रत्यक्ष का मीनिंग ये होता है कि हम लोगों के साथ भी इतनी हजारों की फॉलोइंग है, तो क्या सारे मेरे साथ रहते होंगे? इतना बड़ा हाउस होगा हम लोगों का कि हजारों लोग इकट्ठे एक घर में रहते होंगे? नहीं। प्रत्यक्ष का मीनिंग यहाँ ऐसा होता है कि उनका श्रवण, उनका दर्शन तुम्हारे लिए एनी टाइम मौजूद है, नॉट लाइव। लेकिन आप खाली अपने YouTube से कनेक्ट करते हैं, या आप अपने फोन के अंदर आपने कुछ सेव करके रखा है तो कनेक्ट करते हैं, तुरंत यू हैव देयर दर्शन एंड श्रवण, इजंट इट? और काम श्रवण से होने वाला है, काम मेरे साथ रहकर नहीं होने वाला। मेरे साथ रहोगे तो कभी कंफ्यूज भी हो जाओगे, लेकिन काम जो आप सुन रहे हो ना, उसमें से टेक अवे पॉइंट धर्म श्रद्धा, सुन रहे हो उसके प्रति संवेग उत्साह, सुना है उसके कारण निर्वेग, और उसी की शुश्रूषा, काम इससे होने वाला है, किसी के साथ रहकर नहीं होने वाला। और कोई प्रश्न? धर्म के 4 आधार हमने किए, 73 सूत्र है इस अध्ययन के अंदर। कौन से नंबर का अध्ययन किया हमने? 29। उसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। इसके अंदर 73 सूत्र है, उसमें से हमने 4 अभी आपके सेंटर में किए। इन 73 सूत्रों को हमने 14 गुच्छों में डिवाइड किए हैं। 14 गुच्छे मतलब क्लस्टर्स के अंदर हमने डिवाइड किए। धर्म का 4 आधार, उसके बाद धर्म का आरंभ आएगा, फिर ज्ञान विशुद्धि क्रम आएगा, फिर अलग अलग करके मानसिक अनुशासन, वाचिक अनुशासन, बहुत ही सूक्ष्म। 29th अध्ययन को भी आप अच्छी तरह कर लो, भगवान महावीर की ही वाणी है ना ये, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। कई बार लोग कृपाणुदेव की वाणी को नहीं मानते कि हाउ ऑथेंटिक इट इज, लेकिन ये तो भगवान महावीर की वाणी है, इसके अंदर तो पूरी ऑथेंटिसिटी रखो। और खाली 29th अध्ययन को भी अच्छे से आप अपने जीवन में उतार लो ना, देयर इज नो नीड टू रीड, नो नीड टू लिसन एनीथिंग एल्स। हाँ, ये है कि उसके बाद आप रह नहीं पाओगे, वो बात अलग है, आपको बार बार कुछ न कुछ सुनने की इच्छा होगी, जिससे आपकी मन की शुद्धि होती है, लेकिन इट हैज कंप्लीट मैसेज इन इटसेल्फ। મને ક્વેશ્ચન પ્લીઝ। ખાલી સ્વદયા ઉપર થોડું સમજાવો ને। સ્વદયા ઉપર શું જાણો છો? ના એટલે કારણ કે હમણાં આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે કંઈ પણ કામ કરીએ તો બીજા માટે પણ વિચાર કરવાનો, તો then you know where the સ્વદયા plays role, સ્વદયા એટલે શું? પેલા એ કહો કે પોતાના આત્માને આ બધા બંધનમાંથી મુક્ત કરવું એ સ્વદયા। હા, તો બંધન શેનો છે? બંધન શેનો છે? આ બધા રાગ દ્વેષ કરવું, રાગ અને દ્વેષનો બંધન, ઓલવેઝ રાગ અને દ્વેષનો મિથ્યાત્વ એ બધું આપણે કહીએ તો રાગ અને દ્વેષ ઉઠે છે શું કામે? કારણ કે કામનાઓ છે, અને જેવું તમે કર્મમાં નિષ્કામતા લાવશો એટલે રાગ અને દ્વેષ, અપેક્ષા જ નહીં રહે। અપેક્ષા નથી તો રાગ અને દ્વેષ ક્યાંથી, અને રાગ અને દ્વેષ નથી તો બંધન ક્યાંથી? તો સ્વદયા આપોઆપ થઈ ગઈ કે નહીં? સમજાય છે? આપણે સ્વદયા એટલે હું બસ મારું કરું એ નથી, એ બહુ નિશ્ચયાત્મક દ્રષ્ટિકોણ છે
એનાથી વ્યવહાર શુદ્ધિ નહીં થાય. આખો જે માર્ગ છે વ્યવહાર શુદ્ધિનો, એના માટે આ સ્વદયા એટલે શું? આપણે પોતે જ આખું સાયકલ સમજી લીધું ને. સ્વદયા એટલે આત્માને બંધનથી મુક્ત કરવું. બંધન એટલે શું? રાગ અને દ્વેષનું થવું. રાગ અને દ્વેષ શું કામ થાય છે? કારણ કે બધે કંઈક ને કંઈક કામના અપેક્ષાઓ પેલી છે. હું કહું છું, હવે આ તરફથી વાત કરું છું, અપેક્ષા તોડી દો, કામના નહીં કરો, નિષ્કામ કર્મ કરો. નિષ્કામ કર્મ કરશો એટલે રાગ અને દ્વેષ ઓછા થશે. રાગ અને દ્વેષ ઓછા થશે, બંધન ઓછું થશે. બંધન ઓછું થયું એટલે સ્વદયા થઈ ગઈ. માર્ગ આખો વ્યવહારથી નિશ્ચય સુધી ચાલશે. નિશ્ચયથી વ્યવહાર નહીં ચાલે, ક્યારે પણ નહીં ચાલે. વ્યવહારથી યાત્રા કરતા કરતા અંતે જ્યાં પહોંચીએ છે ને, એ દશાને સ્વદયા કહેવાય છે. પણ હું સ્વદયા કરીને શું કે પરિણામ છે, એ આપોઆપ આટલું કરશું ને રિઝલ્ટમાં સ્વદયા આવી જશે. Questions? No questions? Okay, then we must follow. It is not that I have to speak for 2 hours. It's not at all. હંમેશા 2 કલાક એટલે રાખતા હોય, 2 કલાક પણ ઓછા પડે. San Diego ને એડમિન્ટન ને મેન્ચેસ્ટર ને સાઉથ લંડન, we have been to so many places. 2 કલાકના 2.5 કલાક થયા છે, પણ આ પહેલી વાર મને દ્રષ્ટાંત મળ્યું કે 2.5 કલાક પણ થઈ શકે. બટ ઇટ્સ ઓકે. આઈ થિંક યુ હેડ એનફ. જેટલું મને સમજાવું હતું મેં કોશિશ કરીને સમજાવ્યું છે. પણ જો તમારા પ્રશ્ન આવે હજી, તો હું હજી ચોપાડું ને હજી ઉઘાડ કરું. એટલે લગભગ 2 કલાક અમે એટલે રાખતા હોઈએ કે પાછળના 20-25 મિનિટ આ જસ્ટ ફોર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. કોઈ પ્રશ્ન નથી તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર બિંગ વિથ મી. જય પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ.